Okay. Good morning, students. I am CS Himanshi Tuli and I'll be taking your CA intermediary law classes. And you already know that company law is a very interesting subject matter, and we'll be studying about company law, different other laws that are applicable on company. But before starting with all those things, let me tell you that what is a company, why we are talking about a company basically here. See, you are professionals, you are going to be a chartered accountant in the near future, and although your work is related to the accounting, the auditing, you have not much to do about the compliances and the legal sector, which is much of the work of a company secretary. But still, since you will be dealing with companies, you will be auditing their accounts, you will be preparing their balance sheets, their audit reports, their profit and loss account. So you should be well versed with what actually company is, how does a company function, what are the various terms that are related to the company, that are applicable on the company. Before starting with what is company, let me tell you what are the different sources that are available with the person while he wants to do or while she wants to do any particular business. For example, if I have a person, Mr. A, and he comes to my rescue and says, ma'am, I have rupees 1 lakh. How much amount? Rupees 1 lakh rupees, and I want to do the particular business. Now, I, being a professional, would advise him different things depending upon his or her suitability as to what type of business that particular person wants to do. Okay. Now I'll list down several options that Mr. A would have, because यहाँ पे Mr. A के पास कितने रुपए हैं? 1 लाख रुपए हैं. तो ज़रूरी नहीं कि सीधा हम उसको क्या कर दें, एडवाइस कर दें कि नहीं आप एक कंपनी बना लीजिए. Because when we talk about company, it is not a simple term. It has various compliances, it has various regulations, it has various laws that are applicable on it. So making a company is not an easy task, first of all. But when you will be well versed with what those technical terms are, what those technicalities are, you will be able to make a company, you will be able to convince your clients, you will be able to gather up more information about how does it work. Okay, first of all, starting with the basic. Now if Mr. A comes to my rescue and says, ma'am, I have rupees 1 lakh rupees and I want to start a particular business. Mr. A here is an individual, so I would suggest him different sources of doing business. Like I can suggest him, as you've studied in the previous classes, in your class 12th or in class, you may say in your foundation, about proprietorship, sole proprietorship. So first option that would be available with Mr. A is कि आप सोल प्रोप्राइटर बन जाइए, आप अपना बिजनेस जो है वो अकेले रन करिए, आप उसके कंप्लीट कंट्रोल में हैं, आप ही उसके ओनर हैं, आप ही उसके मैनेजर हैं, सब चीज़ें आप ही के पास हैं, सारे बिजनेस डिसीजंस भी आप ही ले रहे हैं, यहाँ पे किसी और पर्सन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओके, सो मिस्टर ए सेज कि मैम ये ऑप्शन तो बढ़िया है. हमने कहा बेटा बढ़िया तो है, लेकिन इसमें ये दिक्कत है कि अगर तुम सोल प्रोप्राइटर बनोगे तो प्रॉफिट तो पूरा तुम्हारा होगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉस भी पूरा तुम्ही को बियर करना पड़ेगा. कोई भी रूल्स रेगुलेशंस अगर एप्लीकेबल हो जाएंगे तो उन सब के कंप्लायंसेस तुम्हें अकेले ही करने पड़ेंगे. मोर ओवर इट इज अज्यूम कि जब सोल प्रोप्राइटर बिजनेस एग्जिस्टेंस में आता है तो वो तभी तक एग्जिस्टेंस में रह पाता है जब तक सोल प्रोप्राइटर की खुद की लाइफ है. It is assumed in the eyes of the law कि as soon as sole proprietor dies, his business comes to an end. So अब ये तो बड़ा खराब ऑप्शन है कि भाई सोल प्रोप्राइटर जब तक एग्जिस्टेंस में है, अगर अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ भी हो जाता है तो उसकी लाइफ जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. भाई लाइफ तो खत्म हुई, लाइफ के साथ साथ उसका बिजनेस भी एंड अप हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिस्टर ए को एक पहला ऑप्शन दिया कि आप सोल प्रोप्राइटर कर सकते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स हमने उसको बता दिए. उसने कहा अच्छा भाई सोल प्रोप्राइटर तो ठीक है मैम, कोई और ऑप्शन भी है क्या? हमने कहा बिल्कुल भाई, बिल्कुल ऑप्शन है. आप सेकंड ऑप्शन अगर चूज करना चाहें तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं. क्या चूज कर सकते हैं आप? पार्टनरशिप चूज कर सकते हैं. अब इसका कहना आया कि मैम पार्टनरशिप में क्या क्या चीज़ें होंगी? तो आई सेड किसी पार्टनरशिप में यू रिक्वायर मिनिमम 2 पर्सन, एटलीस्ट 2 people should be there if you want to enter into a partnership.
अब उसमें होगा क्या कि अगर दो बंदे मिलके एक साथ बिजनेस बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल कुछ आपको कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, कुछ आपके पार्टनर को कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, पूरी कैपिटल आपके ऊपर नहीं आएगी। दूसरी चीज़, जो आपका लॉस है वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, बिकॉज अभी जो सोल प्रोप्राइटर में लॉस एक इंडिविजुअल बियर कर रहा था, आप अकेले बियर कर रहे थे, आज के टाइम पे वो लॉस जो है वो दो लोगों के बीच में शेयर हो जाएगा। फिर सोल प्रोप्राइटर के केस में बिजनेस डिसीजंस पूरे एंटायरली आप ही ले रहे थे, तो आपको समझाने वाला, आपको सजेस्ट करने वाला कोई भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन इस केस में अब आप क्या कर सकते हैं, जब आप पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं तो आपके बिजनेस डिसीजंस जो हैं वो दो लोगों के बीच में डिवाइड हो गए। मतलब जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी आपने दूसरे वाले पर्सन से पूछ ली, जो दूसरे को नहीं समझ आएगी उसने आपसे पूछ ली। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिल बांट के काम कर सकते हैं। कुछ हमारे एक्सपर्टीज होंगे, कुछ हमारी नॉलेज होगी, कुछ दूसरे पर्सन के स्किल्स होंगे। तो जब वो सब चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टनरशिप में ईजिली एंटर कर सकते हैं। एंड इसमें हम रिस्क और लॉसेस जितने भी हैं, प्रॉफिट्स तो शेयर होंगे ही होंगे, दैट इज बट ऑब्वियस। भाई सोल प्रोप्राइटर में आपको पूरा प्रॉफिट मिल रहा था, यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन आपका लॉस भी तो शेयर हो रहा है। जहाँ आपको पूरा लॉस बियर करना पड़ रहा था, अब आपका लॉस भी तो मिनिमाइज हो गया। जिस प्रपोर्शन में आप प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उसी प्रपोर्शन में आपको लॉस भी बियर करना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है मैम, पार्टनरशिप भी मतलब ठीक लग रहा है, और कोई फॉर्म हो सकता है, कोई ऐसा फॉर्म हो सकता है जिससे मैं अपने बिजनेस को एक अच्छी रिकॉग्निशन दे सकूं, जिससे लोग मेरे बिजनेस के बारे में जाने और कंपनी मतलब बहुत अच्छी तरीके से वो हर जगह रिफ्लेक्ट हो। तो आई सेड सी, नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि आप क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में जा सकते हैं। किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस में। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैम कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस क्या है, क्या मेरे पास इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? आई सेड यस, तुम्हारे पास यहाँ पे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस करने के दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या कर सकते हो, कंपनी बना सकते हो, और दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है, तुम LLP बना सकते हो। LLP, व्हाट इज दिस LLP? Do you know what is LLP? I think so, no. LLP stands for Limited Liability Partnership. See, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। अब हम कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ द बिजनेस में LLP के बारे में पढ़ रहे हैं। LLP stands for Limited Liability Partnership. यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, जब पार्टनरशिप बनती है तो पार्टनरशिप इज मेड विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी माने तो कि अगर पार्टनरशिप फर्म में किसी भी तरीके का कोई भी नुकसान होता है, कोई भी लॉस होता है, तो इस केस में जो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है वो तक अटैच कर ली जाती है अगर लॉसेस रिकवर नहीं होते हैं विद द असेट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इस केस में फॉर एग्जाम्पल में A और B एक पार्टनरशिप फर्म में थे। अब A और B के जो एसेट्स थे पार्टनरशिप फर्म के वो 10 लाख रुपए के थे। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को नुकसान जो है वो 15 लाख का हुआ। तो असेट तो इतने सफाइस नहीं है ना कि वो उनके लॉसेस को पूरा कंप्लीट कर सके। तो उन्होंने क्या किया, मतलब जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स मतलब जो हमें पैसा प्रोवाइड करते हैं बिजनेस रन करने के लिए, या किसी न किसी तरीके से कोई हमें एडवांस दे के रखते हैं, उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि अगर उनका पैसा पार्टनरशिप फर्म से नहीं निकल पा रहा है तो जो वो पार्टनर्स हैं जिन्होंने पार्टनरशिप बनाई है वो उनसे भी पर्सनली उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच कर सकते हैं, उनसे उनकी पर्सनल लाइबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अपनी जेब से पार्टनर को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई दो राहें नहीं है, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। अगर आपके फर्म के एसेट जो हैं या उसके जितने भी कैश है, कैश बैलेंसेस हैं या कुछ भी है आपके पास जो पूरा नहीं कर पा रहा है आपके लॉसेस को, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी अटैच कर ली जाएगी, पर्सनल प्रॉपर्टी ले ली जाएगी। ओके, तो ये हो गई हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हम यहाँ बात कर रहे हैं LLP की, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। तो भैया लिमिटेड लाइबिलिटी का जो क्लॉज है वो हम किससे उठा रहे हैं, यहाँ पे कंपनी से उठा रहे हैं। किससे उठा रहे हैं, कंपनी। तो एक तरीके से देखा जाए तो LLP दो बातों का कॉम्बिनेशन है। कौन कौन सी दो बातें हैं, एक तो हमारी कंपनी है और दूसरी हमारी क्या है, पार्टनरशिप है। दूसरी हमारी क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो LLP इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनी प्लस पार्टनरशिप।
तो मैम पार्टनरशिप तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने अभी कंपनी के बारे में तो पढ़ा नहीं है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट व्हाट एक्चुअली इज कंपनी। ओके, सी कंपनी मीन्स any body corporate, any entity that is created or incorporated under the Companies Act is known as company। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कह रहे कोई भी ऐसी एंटिटी या कोई भी बॉडी कॉरपोरेट जो हमारे कंपनीज एक्ट के अंडर बनी है, जिसको शील्ड किसके अंडर मिली है, कंपनीज एक्ट के अंडर मिली है, जिसको रिकॉग्निशन किसने प्रोवाइड करी है, कंपनीज एक्ट ने प्रोवाइड करी है, वो हमारे लिए यहाँ पर क्या है, एक कंपनी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम ये इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होता है। सी हमारे जो लॉ है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। आई मीन टू से डिफरेंट लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर। वन ऑफ देम इज कंपनी लॉ, जो किस पे स्पेसिफिकली एप्लीकेबल है, फॉर ऑल कंपनीज। ये एक एंटिटी है जो हमारी गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करी हुई है, जो गवर्नमेंट के लिए एक एंटिटी की तरह काम कर रही है, जो कंपनीज एक्ट के अंडर काम कर रही है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कंट्रोल करते हैं। कौन कंट्रोल करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जैसे हर चीज़ की एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, इंश्योरेंस की IRDA है, वैसे ही कंपनी की जो रेगुलेटरी बॉडी है यहाँ पर, वो आपके लिए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। दैट इज वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर ही बनी हुई है। ओके, तो अब जब हम स्टार्ट करेंगे कंपनी के बारे में पढ़ना, तो यहाँ पे हम डिफरेंट चीज़ें हैं जो कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं जो आगे के चैप्टर्स में हमारे पास आने वाले हैं। तो उन सबको समझते हैं अच्छे से कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली में ये लॉ समझाना चाहता है, कॉर्पोरेट लॉ समझाना चाहता है। ओके, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये एक्चुअली चीज़ें हैं क्या, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने सबसे पहला जो टर्म एक्सप्लेन किया है हमें, वो कौन सा एक्सप्लेन किया है? अब्रिज प्रोस्पेक्टस। इन सब बातों पे आने से पहले लेट मी टेल यू कि मैम ये कंपनी जो है दो तरीके की होती है। कंपनी हमारे पास यहाँ पे दो तरीके की एग्जिस्ट करती है। एक हमारी ये होती है प्राइवेट कंपनी, बेसिकली दो है, होती और भी तरीके की है, वो सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम इतना डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी दो तरीके की है, एक है प्राइवेट कंपनी और दूसरी है हमारी पब्लिक कंपनी। ओके, ये जो प्राइवेट कंपनी है ये क्या कंपनी होती है? कह रहे कोई भी कंपनी जो क्लोज ग्रुप ऑफ मेंबर से बनी हुई है, कह रहे क्लोज ग्रुप ऑफ मेंबर से बनी हुई है, वो हमारी क्या है? प्राइवेट कंपनी। कोई भी कंपनी जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एनीवन, आई मीन टू से एनीवन इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पब्लिक कंपनी कहते हैं। ऐसी टाइप की कंपनीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक कंपनीज बोलते हैं। ये कंपनीज का काम क्या होता है? ये लोग पैसा इन्वाइट करते हैं, आई मीन टू से कि इनको काम करना है तो इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है। जब ये लोग फंड्स इकट्ठा करते हैं, फंड्स मतलब कि एनी बिजनेस, भले वो सोल प्रोप्राइटर हो, वो पार्टनरशिप हो, वो LLP हो, वो कंपनी हो, वो कोई भी एंटिटी हो या कोई भी बिजनेस होम हो, सबको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपना बिजनेस रनिंग कर सके, ताकि वो अपना बिजनेस चला सके। इस केस में ये जो फंड रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एंटिटी को अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अपने बिजनेस को रनिंग बनाने के लिए, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? यहाँ पर कैपिटल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कैपिटल। सो कैपिटल इज समथिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय पीपल सो दैट ये एंटिटीज क्या कर सके? रन कर सके, ये एंटिटीज वर्किंग में आ सके, ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं एज वेल एज जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, इन सब को किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट कैपिटल नो एंटिटी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस। ओके, सो इनकी जो कैपिटल होती है वो ये पूरी तरीके से नॉट नेसेसरी एक ही पर्सन को दे, ठीक है, एक पर्सन को तो देंगे नहीं। तो यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम आई मीन टू से 2 लोग तो हो ही हो जो क्या कर रहे हो? उस प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हों। और पब्लिक के केस में क्या होता है कि कम से कम 7 लोग तो हों जो हमारी कंपनी में क्या कर रहे हों? इन्वेस्ट कर रहे हों। तो जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैपिटल की, तो इनकी जो कैपिटल्स होती हैं वो लार्ज अमाउंट की हो सकती हैं। मतलब नॉट नेसेसरी कि आप बड़ा अमाउंट ही लें, आप छोटा अमाउंट भी ले सकते हैं, लेकिन इनकी कैपिटल सिंस हमें 2 लोगों में बांटनी है तो इसको हम एक प्रपोर्शन में बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक कि एक कंपनी है, उसकी कैपिटल है 10 लाख रुपए, मतलब उसको 10 लाख रुपए चाहिए अपना बिजनेस रनिंग बनाने के लिए, उसको 10 लाख रुपए चाहिए अपने बिजनेस को चलाने के लिए।
अब वो 10 लाख एक बंदे से तो लेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल इस कंपनी में 2 लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। 5 लाख रुपए उन्होंने कहा मिस्टर एक्स आप दे दीजिएगा और 5 लाख मिस्टर वाई आप दे दीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है भाई हम दे देंगे, लेकिन ये पूरा अमाउंट जो है जो वो इन्वेस्ट करते हैं इसको हम लोग किस फॉर्म में मानते हैं, शेयर कैपिटल के फॉर्म में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको हम लोग, शेयर कैपिटल। तो जो मिस्टर एक्स दे रहे हैं और जो मिस्टर वाई दे रहे हैं वो इस कंपनी की क्या बनेगी, शेयर कैपिटल बनेगी। ठीक है भाई, शेयर कैपिटल तो बनेगी, लेकिन ये शेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो शेयर का मतलब क्या होता है, कह रहे कोई भी पर्सन अगर किसी एंटिटी में इन्वेस्ट करता है या उसका इंटरेस्ट होता है, क्या होता है उसका इंटरेस्ट होता है, या किसी एंटिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो जितना इंटरेस्ट या जितना शेयर वो इस कंपनी में लेना चाहता है उसे हम उसका क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। शेयर मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम समझें तो हम ये बोलते हैं ना कि फॉर एग्जांपल ये एक केक है, इस केक को अगर हम लोग इतने पार्ट्स में बांटेंगे तो यू वुड वांट कि हाँ मुझे कम से कम एक पीस तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। आपको ये पीस मिले या आपको ये पीस मिले, एनीवन, मतलब आप चाहेंगे ना कि आपको इसमें से एक हिस्सा मिले, तो वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस इज योर शेयर, वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ दिस इज योर शेयर। सिमिलरली कंपनी की जो कैपिटल है और कंपनी की कैपिटल में जो हम यहाँ से कंपनी की कैपिटल में मिस्टर एक्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मेरा इतना हिस्सा इस कंपनी में हो, इस कंपनी की इतनी कंट्रोलिंग मेरे पास आए ही आए, तो ही वुड वांट टू टेक कंपनी शेयर, दैट इज कि मैं आपकी कंपनी का इतना हिस्सेदार बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट इतने शेयर्स ऑफ योर कंपनी, आई वॉन्ट योर बिजनेस डिसीजंस टू बी टेकन बाय माई हैंड। जितने प्रपोर्शन के शेयर लेंगे, जितना ये कंपनी में शेयर होल्ड करेंगे, उतनी ही इनकी क्या होगी, परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग होगी और उतनी ही ज़्यादा बिजनेस डिसीजंस ये कंट्रोल कर पाएंगे। क्लियर होगी ये चीज़। तो यहाँ पे जो पर्सन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे शेयर होल्डर माने जाते हैं। जो वो कंपनी से लेते हैं, जो वो कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं, वो कंपनी का क्या बनता है, शेयर बनता है। वो कंपनी का क्या होता है, शेयर होता है। क्लियर है ये चीज़, पक्का सबको समझ आ गई है, ठीक है भाई। वो कंपनी का शेयर होता है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे थे वो इन जनरल प्राइवेट और पब्लिक कंपनी दोनों से रिलेटेड बात कर रहे थे। हमें जो टॉपिक डिस्कस करना था वो अब्रिज प्रोस्पेक्टस से डिस्कस करना था। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात हम ये स्टार्ट करते हैं कि मैम ये कंपनीज एक्चुअली होती क्या हैं, ये कंपनीज एक्चुअली बनती क्या हैं। देखो पहले हम पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये सब चीज़ें होती क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज होती क्या है। मेरे पास कौन आए थे, मिस्टर ए, ठीक है, और मैं क्या हूँ, एक प्रोफेशनल हूँ। अब वो प्रोफेशनल में मैं सीए भी हो सकती हूँ, वो मैं सीएस भी हो सकती हूँ, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैं सीएस हूँ, आप लोग सीए हैं, ठीक है। मिस्टर ए आए थे मेरे पास, कितने रुपए लेकर आए थे, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। इसने कहा कि मैम मुझे ना सोल प्रोप्राइटरशिप करनी है, ना मुझे पार्टनरशिप करनी है, मुझे कॉरपोरेट फॉर्म में बिजनेस करना है, और उस कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। मुझे क्या करनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से हो जाएगी। बट सबसे पहली बात आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किस तरीके की कंपनी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने इनको ऑप्शन दिए, हमने कहा सुनिए आप या तो प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं या तो आप पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। तो इनका क्राइटेरिया आया मेरे पास, मैम ये प्राइवेट कंपनी क्या होती है और ये पब्लिक कंपनी क्या होती है। ऐसे देखिए प्राइवेट कंपनी में आपके सिर्फ क्लोज ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे। क्लोज ग्रुप ऑफ मेंबर्स मतलब जनरली आपके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो या नियर एंड डियर वंस, फैमिली मेंबर्स कह लीजिए, या आपके जो नियर एंड डियर वंस होते हैं वो आपके क्लोज ग्रुप ऑफ पीपल माने जाते हैं। एंड अगर वो सारे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप उनके थ्रू, उनके साथ मिलकर आप कंपनी बना सकते हैं। किसी बाहरी पर्सन से आप पैसा इनवाइट नहीं कर सकते हैं, पूरा पैसा आप ही को लगाना पड़ेगा या आपके फैमिली मेम्बर्स को लगाना पड़ेगा। उसने कहा ओके। एंड ये पब्लिक कंपनी क्या है, हमने कहा देखिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, इसमें कोई भी पर्सन, एनीवन, इवन इफ वो पर्सन क्या हो, आपके लिए एक स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, वो आपके पास आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है।
इसने कहा मैम ऐसा है, अभी हम पब्लिक कंपनी तो नहीं रखना चाहते हैं, हम सिर्फ प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। आप प्राइवेट कंपनी के हिसाब से बताइए कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो लेनी पड़ेंगी। हमने कहा ठीक है, पहले हम तुम्हें प्राइवेट का बता देंगे, लेकिन साथ साथ हम तुम्हें पब्लिक का भी बताएंगे। उसने कहा ठीक है भाई, प्राइवेट का भी बताइए, पब्लिक का भी बताइए। ठीक है, अब उसने बात करी प्राइवेट कंपनी बनाने की। ठीक, हमको ये तो पता चल गया कि कौन सी टाइप की कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं, प्राइवेट और या फिर पब्लिक। ठीक है, हमें पता चल गया कि प्राइवेट कंपनी में इनकॉर्पोरेट करनी है। हमने कहा देखो, प्राइवेट कंपनी तुम बनाना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी में भी 2 क्राइटेरियाज हैं। अगर तुम अकेले ही अपना बिजनेस रन करना चाहते हो, मतलब सिर्फ एक ही आदमी अपना बिजनेस चलाना चाहता है, लेकिन सिर्फ क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कॉर्पोरेट रिकॉग्निशन। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कॉर्पोरेट रिकॉग्निशन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो भी हो सकता है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैम मैं अकेले तो काम नहीं कर पाऊंगा, कम से कम मिनिमम 2 लोग तो मेरे साथ होने ही चाहिए। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मिनिमम 2 लोग हैं तुम्हारे साथ, तब भी तुम कंपनी बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्राइटेरिया जो 1 मैन का था, तो अगर ये 1 मैन के साथ अपनी प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करते तो इसको हम लोग किस नाम से जानते, OPC। OPC किसके नाम से जानते हैं हम लोग, OPC। OPC स्टैंड्स फॉर 1 पर्सन कंपनी। OPC स्टैंड्स फॉर 1 पर्सन कंपनी, जहां मिस्टर ए अकेले ही काम करते, इनके साथ कोई दूसरा पर्सन ना होता, सिर्फ 1 शेयर होल्डर 1 डायरेक्टर होते, तो ये OPC बना लेते। लेकिन मिस्टर ए जो थे वो दिल से कमज़ोर थे, उन्होंने कहा नहीं मैडम मैं अकेले काम नहीं कर पाऊंगा, आप कम से कम 2 लोगों की ऐसी चीज़ बनाइए जहां 2 लोग मिल के काम कर सके। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम 2 लोगों की मिल के बना देते हैं। ठीक है, तो भैया इनका जो OPC का क्राइटेरिया था वो तो ख़त्म हो गया। अब जो दूसरा क्राइटेरिया आया वो मिनिमम 2 पर्सन का आया। मिनिमम 2 पर्सन के लिए हमने कहा ठीक है भाई, आप तो मिस्टर ए हैं ही, साथ में एक और पर्सन को ले आइए, तो ये मिस्टर बी को भी ले आए। तो अब ये 2 लोग हैं जो मिलके क्या करेंगे, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। ऐसे ओके, वेरी गुड। ठीक है, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो जो बातें मैं आपसे पूछूंगी आपको उन सब चीज़ों के बारे में मुझे बताना पड़ेगा। ही सेड ओके मैम, आप पूछिए, हम आपको सब बताएंगे। ठीक, देखो कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्टेंस में आती है, ठीक है, एनीथिंग दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, उसके लिए सबसे पहली बात क्या रिक्वायर्ड होता है कि उसका नाम क्या होगा। भाई तुम लोग भी जब दुनिया में आए थे तो सबसे पहली बात तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा नाम रखा था कि नहीं रखा था। ठीक है, बिकॉज कोई तुमको बच्चे या मतलब छोटा बेबी या इस सब के नाम से तो बुलाएगा नहीं, बट ऑब्वियस वो तुम्हारा कोई ना कोई नाम रखेंगे जिससे तुमको रिकॉग्नाइज किया जाए। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारी कंपनी है, ये कंपनी भी हमारी क्या है, एक तरीके से मतलब कह सकते हैं ये एक हमारा छोटा सा चाइल्ड है जिसकी हमें क्या करनी है, केयर टेकिंग करनी है, जिसको हमें बड़ा करना है, जिसको हमें एक लेवल पे लेकर जाना है, जिसको हमें ग्रोथ करनी है। तो स्टार्टिंग विद द बेस रूट लेवल हमने क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि हम इसका नाम क्या रखेंगे। ठीक है, नेम ऑफ द कंपनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगर कंपनी का नाम नहीं होगा तो हम उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, हम उसको किस नाम से बुलाएंगे, हम कैसे बोलेंगे कि भैया ये इनकी कंपनी है, कि इनका ये इसका नाम ये है, कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप बताइए कि आप इस कंपनी का नेम क्या रखना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है मैम, ये तो आप बात एकदम ठीक कह रही हैं, नेम तो कंपनी का रखना ही पड़ेगा। ऐसे यस, नेम के बिना तो काम नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने कहा क्या मैम इसका हम कुछ भी नेम रख सकते हैं। ठीक है, आप बताइए क्या कुछ भी नाम। अब जैसे हम लोग का तो कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, मेरा नाम हिमांशी है, आपका नाम फॉर एग्जांपल मीनाक्षी होगा या मीनल होगा या व्हाटएवर इट मे बी। ठीक है, तो कोई क्राइटेरिया हम लोग के केस में तो होता नहीं है, बस फर्स्ट अल्फ़ाबेट डिसाइड कर देते हैं एंड देन हम लोग उसके अकॉर्डिंग नाम रख लेते हैं। अब कंपनी के केस में पंडित जी तो है नहीं जो फर्स्ट नेम डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई अच्छा ये फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, आपको इसी से ही कंपनी का नाम स्टार्ट करना है। तो भाई कंपनी का नामकरण कैसे किया जाए, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि इस कंपनी का नाम कैसे सेट किया जाए। तो ऐसे देखो, अगर हम किसी भी चीज़ का नाम रखना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ ऑल यहाँ हमारे लिए हमें किसका नाम रखना है, अपनी कंपनी का नाम रखना है। तो ये देखना ज़रूरी है कि हमारी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, बिकॉज अगर हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे तो बट ऑब्वियस उसका ऑब्जेक्ट, उसका कंटेंट उसी चीज़ में छुपा होना चाहिए। जैसे आई टेल यू वन थिंग,
अगर मैं आपको वर्ड यूज करूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई यूज वर्ड टेक्नो, ठीक है, इस टेक्नो वर्ड से आपको क्या समझ आता है? एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू IT सेक्टर, वो हमारा क्या आता है? टेक्नो आता है, ठीक है। इफ आई यूज वर्ड कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन से आपको समझ आ रहा है मैम एनीथिंग जो बिल्डिंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, बनाने से, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू दैट, ठीक है। आई सेड यस, कंस्ट्रक्शन से तो वही समझ आता है। तो अगर मैं कंपनी का नाम रख रही हूँ तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ऐसा नाम रखूँ जो आपके ऑब्जेक्ट से लिंक्ड अप हो, सो दैट कभी भी कोई पर्सन अगर आपकी कंपनी का नाम पढ़े तो वो नाम पढ़ के बता दे कि ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी राशन शॉप में जाते हैं और उस राशन शॉप का नाम क्या है? गीता प्रोविजनल स्टोर, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस नेम, ठीक है। इस नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? ठीक है, वॉट यू अंडरस्टूड इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये वर्ड है गीता, ठीक है। इससे आपको ये समझ आ रहा है कि देखिए इनके घर का कोई ऐसा मेंबर होगा जिसका नाम क्या होगा? गीता होगा। देन प्रोविजनल स्टोर से आपको ये मतलब समझ आ रहा है कि ये क्या करेंगे? हमें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे, जैसे वो हमारे राशंस, ठीक है, या हमारे डेली यूज़ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमें इसमें प्रोवाइड करेंगे। बताओ इस नाम से आपको ये समझ आया कि नहीं आया? अब अगर मैं ये बोलूँ वर्ड खन्ना ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, अगर मैंने ये वर्ड यूज़ किया तो आपको इससे ये समझ आ रहा है खन्ना ऑटोमोबाइल्स मतलब ये किसी ना किसी पर्सन का क्या है? सरनेम है, ठीक है। और ऑटोमोबाइल्स का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल्स मतलब अब या तो वो इसमें रिपेयरिंग का काम कर रहे होंगे, ठीक है, या फिर वो कोई न्यू चीज़ हमें क्या कर रहे होंगे? प्रोवाइड कर रहे होंगे। यू सेड यस मैम, यू आर राइट एग्जैक्टली। लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, ठीक है। अब भी जैसे हम अपना नाम ही बता देते हैं, इफ आई से एड्यू इंडिया, ठीक है, इससे क्या नाम समझ आ रहा है? एड्यू मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन एंड इंडिया मीन वी विश टू कवर पैन इंडिया स्टूडेंट्स। पैन इंडिया स्टूडेंट्स मतलब हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सारे लोग, जितने बच्चे हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल फील्ड में हैं या डिफरेंट फील्ड्स में हैं, वो सब क्या हों? कनेक्ट हों आके। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो नाम से ही एक पर्सन की आइडेंटिटी है, उसी से ही हमें समझ आता है कि वो क्या काम करने वाला है। क्या बिल्कुल मैम, नाम से तो समझ आएगा, ऐसे कैसे आएगा? हमने कहा ठीक है भाई मिस्टर ए, आप बताइए सबसे पहली बात नाम डिसाइड करने से भी पहले कि आपकी कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि अगर हमें ऑब्जेक्ट पता होगा तो ही तो हम डिसाइड कर पाएंगे कि उस कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। यस मैम, ऑब्जेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसने बोला कि मैम हम क्या करते हैं, हम IT सेक्टर में जाना चाहते हैं। कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं? IT सेक्टर में जाना चाहते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डील करना चाहते हैं, ठीक है। हमने कहा ठीक है, आप हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डील करना चाहते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उनको सेल करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी, ठीक है। आप ऐसा करिए, आप मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? इन्होंने कहा मैं मिस्टर ए हूँ, ठीक है, और ये मिस्टर बी हैं। मेरा नाम ही मिस्टर है और इनका नाम भी मिस्टर बी है। हमने कहा ठीक है भाई, ऐसा करते हैं, हम इस कंपनी का नाम रखते हैं AB, ठीक है, डिजिटेक, ठीक है। क्या नाम रखते हैं इसका हम लोग? डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम रख दिया हमने इसका? AB डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड। इसने कहा अरे वाह मैम, AB मतलब ये जो नाम है, फर्स्ट नेम जो है, ये नेम किसका हो गया? हमारे प्रमोटर्स का हो गया। किसका नेम हो गया? हमारे प्रमोटर्स का। डिजिटेक से हमें ये समझ आ गया कि ये किसी तरीके का कैसा काम करने वाले हैं? IT से रिलेटेड काम करने वाले हैं। प्राइवेट लिमिटेड से हमें ये समझ आ गया कि मैम ये कंपनी कैसी है? एक प्राइवेट कंपनी है। ये कंपनी कैसी है? एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। अगर ये पब्लिक कंपनी होती तो फ़र्क क्या होता कि इसका नाम जो AB डिजिटेक है उसकी जगह क्या, प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी जगह वर्ड क्या हो जाता? AB डिजिटेक लिमिटेड। बस फ़र्क देखो क्या है, यहाँ ये प्राइवेट वर्ड जुड़ा हुआ है, जो लिमिटेड कंपनी मतलब पब्लिक कंपनीज के केस में हम लोग प्राइवेट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारी वर्किंग, हमारा नाम क्या हो गया? AB डिजिटेक लिमिटेड। आई होप इट इज़ क्लियर।
ठीक है मैम, समझ आ गया। लेकिन एक चीज़ बताइए, आपने वर्ड ऊपर यूज़ किया प्रमोटर्स, ये प्रमोटर्स कौन होते हैं? हमने कहा वाह बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने, प्रमोटर्स कौन होते हैं? देखो प्रमोटर्स कौन होते हैं, कह रहे एनी पर्सन हु फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिंग्स एन आइडिया ऑफ मेकिंग अ कंपनी। ठीक है, आइडिया जो है वो एक इनोवेटिव आइडिया है। कैसा आइडिया है? इनोवेटिव आइडिया है। तीसरा, वो रिस्क बियर करना चाहता है, कैपिटल अरेंज करना चाहता है, सारे रिसोर्सेज जो भी मुझे चाहिए बिजनेस रन करने के लिए उन सब को अरेंज करता है। तो ऐसा पर्सन जो एक बिजनेस आइडिया के साथ, इनोवेटिव आइडिया के साथ सारे रिस्क बियर करना चाहता है, कैपिटल लगाता है, रिसोर्सेज अरेंज करता है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने वर्ड सुना होगा इकोनॉमिक्स में कि मैम 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो लैंड, भाई बिजनेस कर रहा है, कंपनी ओपन करेगा, लैंड रिक्वायर्ड है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। काम कर रहा है, कंपनी खोल रहा है, बंदे रिक्वायर्ड है काम करने के लिए, दैट इज लेबर रिक्वायर्ड है। कैपिटल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, बिना पैसों के तो कोई बिजनेस रन कर ही नहीं सकता। एंड ये जो एंटरप्रेन्योर है ना, यही हमारा क्या है यहाँ पे, प्रमोटर है। तो जब हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आई वुड वांट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तो हम कोई बिजनेस रन कर ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब अरेंज करने का काम किसका है, हमारे एंटरप्रेन्योर भाई साहब का है। इसीलिए यहाँ पे किस नाम से जाने जा रहे हैं, प्रमोटर्स के नाम से जाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे वी हैव 2 पीपल हु आर द प्रमोटर्स, और वो कौन है हमारे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ओके, सो हमने क्या क्या डिसाइड कर लिया। सबसे पहली बात, हमने कंपनी जब हम बनाने लगे तो हमने उनसे फर्स्ट चीज़ पूछी कि आप किस टाइप की कंपनी बनाना चाह रहे हैं। टाइप में हमें आंसर मिल गया कि हम प्राइवेट कंपनी बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, फिर हमने उनसे पूछा अच्छा ठीक है प्राइवेट तो आप बनाना चाह रहे हैं, प्राइवेट में 2 क्राइटेरियाज हैं, आप अकेले काम करेंगे या 2 लोग मिलके। अगर आप अकेले काम करते तो वो ओपीसी होती, नहीं तो वो आपकी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी हो जाती, या इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी हो जाएगी, बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, नॉर्मल हम अभी स्मॉल मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी इतना पैसा नहीं होगा इनके पास। दूसरी चीज़ पूछी, इन्होंने कहा नहीं भाई हम ओपीसी तो नहीं बनना चाहते, हम ये प्राइवेट कंपनी करेंगे। हमने कहा ठीक है भाई। आप तीसरी चीज़ ये बताओ कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या रखना चाहोगे, बिकॉज ऑब्जेक्ट से ही तो हमें पता चलेगा कि हम आगे कौन सा बिजनेस करेंगे, क्या उसका नाम रखेंगे। हमने ऑब्जेक्ट पूछा, उसने कहा कि हमको आईटी सेक्टर में जाना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डील करना है। वेरी गुड, ठीक है। फिर चौथी चीज़ हमने उससे क्या पूछी कि हमें तुम्हारी कंपनी का नेम सेट करना है। इस नेम को सेट करने में ही मुझे क्या रिक्वायर्ड था, उसका ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उस कंपनी का नाम क्या होगा। ठीक है, तो नेम और ऑब्जेक्ट ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। अगर नेम आपका आपके ऑब्जेक्ट से मैचिंग नहीं है या आपके ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता नहीं है तो इट मे क्रिएट कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ पब्लिक। एंड मोर ओवर जब आप नेम अप्लाई करेंगे, ठीक है, एमसीए पोर्टल पे, तो वो एक्सेप्ट भी नहीं होगा। रीजन भी कि आपका नेम हैज़ नो कनेक्शन विद द बिजनेस दैट यू आर एंटरिंग इनटू या बिजनेस दैट यू वांट टू परस्यू विद। तो नेम का ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड अप होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कहा ठीक है भाई, हम नेम को ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करेंगे। तो इन्होंने हमें नेम बताया, हमने इनका नाम रखा AB डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड। बोलो यहाँ तक बात समझ आ गई? इतनी चीज़ें हमने सेट कर ली। ठीक है, अब हम 5th क्राइटेरिया पे आते हैं और इनसे हम पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप अपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाना चाहते हैं। कैपिटल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर और नॉट? सी, कैपिटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज जब तक आपके पास कैपिटल नहीं होगी इन्वेस्ट करने के लिए तब तक आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि बिना कैपिटल के देयर कैन बी नो बिजनेस। कोई भी रनिंग बिजनेस जो है वो बिना कैपिटल के नहीं हो सकता। तो कैपिटल हमने बताया था, जो भी पैसा बिजनेस को रिक्वायर्ड है ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, उसको रनिंग में ला सके, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अब यहाँ पर कैपिटल जो होती है वो 4 तरीके के हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली जो कैपिटल हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारी कौन सी है, ऑथराइज्ड कैपिटल। कौन सी कैपिटल है हमारी, ऑथराइज्ड कैपिटल।
ठीक है। दूसरी कैपिटल जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वो हमारी कौन सी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। थर्ड जो हम कैपिटल यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो हमारी कौन सी है, इशूड कैपिटल। कौन सी कैपिटल है, इशूड कैपिटल। एंड फोर्थ कैपिटल जो मेरी है वो हमारी कौन सी है, पेड अप कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर। ये 4 तरीके के कैपिटल हैं जो एक कंपनी में एग्जिस्ट करती हैं एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑल दोज। सी, ये जो ऑथराइज कैपिटल है इसको हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी या फिर नॉमिनल कैपिटल ऑफ द कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखो मैं बिजनेस कर रही हूँ, आज की डेट में मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे मैं और पैसे इन्वेस्ट करूँ, नॉट नेसेसरी कि मैं उस 1 लाख तक ही रिस्ट्रिक्ट रहूँ। भाई मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, मैं और पैसा लगाऊंगी। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप और पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपकी एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि इस लिमिट तक ही आप कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड आप कैपिटल रेज नहीं कर सकते। तो वो जो लिमिट है वो एक स्टैंडर्ड कैपिटल है जिसके बियॉन्ड आप शेयर इशू नहीं कर सकते हैं, उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, ऑथराइज्ड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में, आज की डेट क्या है, आज 8 जुलाई है 2020। आज की डेट पे आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपीज़ हैं। कितने हैं आपके पास, 1 लाख रुपीज़। लेकिन यू आर एक्सपेक्टिंग कि जैसे जैसे मेरा बिजनेस रन करेगा तो एट एनी फ्यूचर डेट मेरे पास हो सकता है 10 लाख हो। आज 1 लाख है, कल हो सकता है 10 लाख हो। तो मैं प्रिडिक्शन करके चल रही हूँ कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है मुझे 10 लाख रुपए तक अपने बिजनेस में क्या करना पड़े, इन्वेस्ट करना पड़े। तो द मैक्सिमम प्रपोज्ड कैपिटल जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे बिजनेस में लगेगी, उसे हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑथराइज्ड कैपिटल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पे, ऑथराइज्ड कैपिटल कह रहे हैं। सो दिस कैपिटल विच आई एम प्रपोजिंग कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मेरी कैपिटल इतनी तो पहुँचेगी ही पहुँचेगी, उससे हम क्या कहेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। मतलब कंपनी सिर्फ और सिर्फ पैसा कितने हद तक रेज कर सकती है बिजनेस में, 10 लाख तक। अगर उसको 10 लाख से ज़्यादा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे लगाने होंगे, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी 12 लाख रुपए जो है वो इनवाइट करना चाहती है, 12 लाख के कैपिटल लगाना चाहती है, इस केस में उसको अपनी ऑथराइज कैपिटल क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। बिकॉज ऑथराइज कैपिटल इज अ लिमिट बियॉन्ड विच आप शेयर्स इशू कर ही नहीं सकते या कैपिटल रेज कर ही नहीं सकते। आपको इस लिमिट के विद इन ही रहना है, इस लिमिट के बियॉन्ड जाना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो हम बहुत सोच समझ के बनाते हैं कि हमारी लिमिट क्या होगी, हमारी कैपिटल कितनी होगी, उस एक्सटेंट तक ही हम क्या करते हैं, शेयर्स इशू करते हैं। उससे ज़्यादा चाहते हैं तो उससे ज़्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं। उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल की। ठीक है, वो हमने डिसाइड कर ली कि कितनी होगी हमारी, 10 लाख रुपए। एट प्रेजेंट मिस्टर ए और मिस्टर बी कह रहे हैं कि मैडम, मिस्टर ए मिस्टर बी बोले कि देखिए मैडम हम सिर्फ 50,000 लगा पाएंगे। मिस्टर बी कहता है मैडम हम भी सिर्फ 50,000 ही लगा पाएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 लगाओगे, टोटल बिजनेस में कितना लग जाएगा, 1 लाख रुपए लग जाएगा। इस 1 लाख को हम लोग शेयर्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने शेयर्स में, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, अब बात ये आती है कि मैडम ये 10 रुपीज़ जो है ये कैसे डिसाइड हुआ, हाउ इट इज़ डिसाइडेड, ये 10 रुपये हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये इसकी टेक्निकलिटी हम आपको बाद में बताएंगे। बस इतना समझ लो कि ये जो 10 रुपये हैं ये हम लोग कहते हैं पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर, या पर शेयर की जो वैल्यू होती है उसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू। पेड अप वैल्यू बोल दें, नॉमिनल वैल्यू बोल दें। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो ये 10 रुपये है, तो हमने 10,000 शेयर्स डिवाइड करे 10 रुपये के। इस 10,000 में से 5,000 शेयर्स जो है वो किसके पास चले गए, ए के पास। 5,000 शेयर्स जो है वो किसके पास चले गए, मिस्टर बी के पास।
अब 5000 शेयर लिए हैं, एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, तो इसका मतलब मिस्टर ए कितना पैसा लगाएंगे, 50,000 रुपये, मिस्टर बी कितना पैसा लगाएंगे, 50,000 रुपये, इनके 50-50 मिलके कंपनी की कैपिटल कितनी हो गई, करेंट 1 लाख रुपए हो गई। बोलो समझ आ गई यहाँ तक बात? कंपनी की टोटल कैपिटल अभी कितनी हो गई, 1 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए जो ये लोग देने के लिए तैयार हैं और कंपनी उनको ऑफर भी कर रही है कि हाँ हमें इतने तो आप पैसे दो ताकि हम बिजनेस अपना रन कर सकें, तो वट एवर कंपनी इज इन्वाइटिंग कि हाँ हमें इतना तो चाहिए ही चाहिए, उससे हम कंपनी की क्या कहते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कंपनी की सब्सक्राइब कैपिटल। वट एवर दे आर पेइंग, ठीक है, उसको हम कंपनी की क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं उससे हम लोग, कंपनी की पेड अप कैपिटल। क्लियर है चीज? इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 तरीके की कैपिटल पढ़ ली। एक हमने पढ़ी ऑथराइज कैपिटल, एक हमने पढ़ी सब्सक्राइब कैपिटल, एक हमने पढ़ी पेड अप कैपिटल। जो नेक्स्ट कैपिटल है वो हमारी क्या है, इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब कैपिटल में फर्क देखो क्या होता है। कह रहे इशूड कैपिटल इज द कैपिटल जो कंपनी इनवाइट करती है कि कंपनी इतने शेयर्स इशू करना चाहती है, जितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है वो हमारी इशूड कैपिटल होती है। उसमें से पब्लिक जितना अग्री करता है कि ठीक है हम इतने शेयर्स आपके लेंगे, वो हमारी सब्सक्राइब कैपिटल होती है। और उसमें से एक्चुअली जितना वो पे करते हैं वो कंपनी की क्या होती है, आपकी पेड अप कैपिटल। ठीक है, we'll discuss it with the help of examples but in our next class. Okay, I hope it is clear. So अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं कंपनी से रिलेटेड, आप इतना अच्छे से रिवाइज करिएगा। We'll take up our next class and we'll then discuss what are different provisions that are applicable on the companies and different technicalities जो हमारी कंपनी में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? So bye bye, wait for the next session, we'll be back soon. Okay, bye.